بات کریں گے فیصل آباد کے موسم کے حوالے سے۔ آپ کو بتائیں کہ فیصل آباد میں مونسون کے رنگ، شہر میں مختلف مقامات پر کہیں تیز تو کہیں ہلکی بارش، لاری اڈے، چناب کلب سے ملحقہ علاقوں میں بارش ہونے سے موسم قدرے بہتر ہو گیا، ہلکی ہوا چلنے کا سلسلہ جاری ہے، گرمی کا جو زور ہے وہ ٹوٹ گیا ہے، عوام کو سکھ کا سانس ملا ہے۔ فیصل آبادی گرمی سے خاصے پریشان تھے اور جو سورج ہے اس نے آج اس کا پارا کم ہوا ہے، بادلوں نے آ کے سورج کی تپش کو کم کر دیا ہے، گرمی میں کمی آئی ہے اور رم جھم سے فیصل آباد کا موسم خوشگوار ہو گیا ہے۔ شہر کے مختلف مقامات پر کہیں تیز تو کہیں ہلکی بارش ہوئی ہے، لاری اڈے، چناب کلب سے ملحقہ علاقوں میں بارش ہوئی ہے اور بارش ہونے سے موسم قدرے بہتر ہو گیا ہے۔ فیصل آباد کے ٹرانسپورٹرز نے کرایوں میں کمی کا اعلان کر دیا ہے۔ فیصل آباد سے دیگر شہروں کا کرایہ 5% تک کم کر دیا گیا۔ لاہور کا کرایہ 480 سے 470 اور ٹوبہ کا کرایہ 280 سے 270 روپے کر دیا گیا۔ اس حوالے سے کیا تفصیلات ہیں محمد علی نارو سے جانتے ہیں۔ علی اپڈیٹ کیجئے گا۔ جی بالکل، پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں کے بعد جو ٹرانسپورٹ ہیوی ٹرانسپورٹ ہے اس کے کرایوں میں بھی کم بیش 5% تک کا اضافہ کر دیا گیا ہے۔ جو کرایہ ہیں وہ 10 سے لے کر 20-30 روپے تک کم کیے گئے ہیں۔ شہری اس حوالے سے کیا کہتے ہیں، ہمارے ساتھ موجود ہیں، بات بھی کر لیتے ہیں ان سے۔ جناب بتائیے گا، آگے آ جائیں آپ، کرایہ کم کیے گئے ہیں، کتنے کرنے چاہیے تھے اور جتنے ہوئے مطمئن ہیں؟ مطمئن نہیں ہوں، کرایہ کم ہونے چاہیے۔ یہ جو کم ہوئے ہیں یہ آج کل جو حالات جا رہے ہیں ان کی مد میں لوگوں کا گزارا بہت مشکل ہو رہا ہے، بجلی کے بلوں کا، یہ کرایہ اور کم کرنے چاہیے۔ کرایہ اور کم ہونے چاہیے۔ جناب آپ بھی آگے آ جائیں، جس طرح سے مہنگائی ہے، جب پیٹرول بڑھتا ہے، ڈیزل بڑھتا ہے تو کرایہ بڑھا جاتے ہیں، کیا اسی تناسب سے کم ہو رہے ہیں؟ مسافر ہونے کے ناطے کیا کہیں گے؟ تھوڑے سے کرائے مزید کم ہونے چاہیے، جتنے مطلب کہ پیٹرول کی قیمت کم ہوئی ہے اس حساب سے نا تھوڑا سا ریلیف مزید ملنا چاہیے، کیونکہ آج کل مہنگائی کا دور ہے تو دوسری شہر سے سفر کرنا ہوتا ہے تو کوئی اور معاملات ہوتے ہیں، کرایہ مزید کم ہونا چاہیے۔ کرایہ مزید کم ہونے چاہیے۔ اور بھی ہمارے ساتھ مسافر موجود ہیں، جناب بتائیے گا، کرائے کم ہوئے ہیں جتنے مطمئن ہیں ان سے، یا مزید کم ہونے چاہیے؟ یہ گورنمنٹ کو چاہیے کہ اتنی مہنگائی، اتنا بوجھ بجلی کا بلوں کا ہے اور بہت گھر کی مختلف چیزوں کی اشیاء مہنگی ہونے کی وجہ سے بہت بوجھ ہے۔ یہ کرائے کم تو ہوئے ہیں مگر یہ مسلسل بہت کم ہو رہے ہیں۔ ہمیں گورنمنٹ کو چاہیے اس کو مستقل طور پہ زیادہ سے زیادہ کم کیا جائے تاکہ لوگوں کو ریلیف مل سکے۔ جی بالکل، مسافروں کو ریلیف مل سکے مستقل بنیادوں پر۔ ٹوبہ میں ٹرانسپورٹ کے کرایوں میں 5% تک کمی کر دی گئی۔ شہری نے کرایوں میں کمی کو اونٹ کے منہ میں زیرے کے برابر قرار دے دیا۔ مزید شہریوں کا کیا کہنا ہے، مبشر حسن نقوی سے جانتے ہیں۔ مبشر اپڈیٹ کیجیے گا اس حوالے سے۔ جی بالکل، پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں کمی کے بعد ٹوبہ ٹیکسی میں بھی ٹرانسپورٹرز نے کرایوں میں کمی کا اعلان کیا تھا۔ 5% کمی کا اعلان کیا گیا تھا، لیکن شہری کہتے ہیں اس پر عمل درآمد نہیں ہو رہا۔ 5 سے 7 روپے جو ہے وہ کرایہ کم کیا گیا، جس کو شہری کہتے ہیں کہ وہ اونٹ کے منہ میں زیرے کے برابر ہے۔ کچھ شہری موجود ہیں، ان سے بات کرتے ہیں۔ آپ بتائیے گا کہ کدھر جا رہے ہیں، کرایہ کتنا ہے؟ سر میں پیر مل جا رہا ہوں، کرایہ تقریباً 150 ہے، ٹھیک ہے۔ ٹرانسپورٹ نے اعلان کیا تھا کرایہ کم کریں گے، اس کی وجہ سے کرایہ 5-10 روپے کم کیا ہے۔ اس کی وجہ سے ہمارے پاس چینج بھی نہیں ہوتی، 5-10 روپے ہمارا کرایہ تو وہیں ہے، ٹھیک ہے۔ مطالبہ کریں کہ کرایہ کم کر دیا جائے۔ تو پہلے کتنا کرایہ تھا پیر محل کا؟ تقریباً پہلے بھی اتنا ہی ہوگا، 150-200 اتنا ہی ہوگا، ہاں جی۔ تو اس کے بعد کرایہ وہیں کھڑا ہے تو ہم بھی وہ بحث کرتے ہیں، ٹھیک ہے، 5-10 روپے کم کرتے ہیں، اس کے بعد پھر وہی کہتے ہیں کہ جانا جاؤ، نہیں جانا نہ جاؤ۔ جی بالکل، 5 سے 7 روپے یا 10 روپے کی کمی کی جا رہی ہے، جس میں شہری کہتے ہیں کہ ان کے پاس تو چینج ہی نہیں ہوتی ہے اور ان کے کرائے تو وہیں پر جا کر پہنچتے ہیں۔ تاہم ریجنل ٹرانسپورٹ اتھارٹی کا دعویٰ ہے کہ کرایوں میں کمی کروائی جا رہی ہے اور شہری بھی کہتے ہیں کہ جس طرح پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں کمی ہو رہی ہے، پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں کمی کے بعد ٹرانسپورٹرز نے کرایوں میں جو کمی کی ہے اس کو شہریوں نے ناکافی قرار دے دیا ہے۔ مبشر ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے، بہت شکریہ آپ کا تفصیلات کے لیے۔ پیٹرولیم مصنوعات سستی ہونے کے باوجود ضلع انتظامیہ جھنگ کرایوں میں کمی کا نوٹیفیکیشن نہ جاری کر سکے، مسافر پرانے کرائے دینے پر مجبور ہیں۔ لاری اڈے پر ٹرانسپورٹرز نے لاہور کے کرائے میں 50 روپے کی کمی کر دی۔ اسی پہ بات کریں گے وسیم عزیز سے۔ وسیم اپڈیٹ کیجیے گا۔ حکومت کی جانب سے شہریوں کو پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں کمی کر کے ریلیف تو فراہم کیا گیا، لیکن جو ضلع انتظامیہ ہے ان کی جانب سے ضلع جھنگ میں تاحال کرایوں میں کمی کا نوٹیفیکیشن جاری نہ ہو سکا، جس کے باعث جو عام شہری ہیں، جو مسافر ہیں، ان تک اس ریلیف کی سہولت جو ہے وہ نہ پہنچ سکی۔ تاہم لاری اڈا میں کچھ ٹرانسپورٹرز کی جانب سے خود ساختہ طور پر جو ہے وہ کرایوں میں کمی کی گئی ہے۔ میرے ساتھ یہاں پر ٹرانسپورٹر موجود ہیں، ان سے بات کرتے ہیں۔ سر بتائیے گا، ٹرانسپورٹر ہیں آپ، تو کرایوں میں کتنی کمی کی گئی ہے؟
पहले 1200 था, 50 रुपये कम कर दिया, 1150 हो गया। जंग से लाहौर का किराया 1150 कर दिया। हाँ जी, हाँ जी। जी बिल्कुल, इनका यही कहना है कि जंग से लाहौर का किराया जो है वो कम किया गया है। इसी तरह जो दीगर शहर हैं, रावलपिंडी है, रावलपिंडी का किराया जो है वो 1700 रुपया वसूल किया जा रहा है, जबकि दीगर जो छोटे शहरों को जाने वाली ट्रांसपोर्ट है उसका किराए में ताल कमी ना हो सकी, जिसके बायस जो है वो शहरी इस रिलीफ से महरूम है। शहरियों की जानिब से जिले इंतजामिया। ठीक है वसीम बख्शी, अब रास्ते होंगे बेहतर और राब्ते होंगे मजीद आसान। जंग जिला में बड़े पैमाने पर रोड सेक्टर स्कीमों पर काम शुरू करने का फैसला। महकमा हाईवे की जानिब से 9 स्कीमों के लिए टेंडरिंग का अमल शुरू कर दिया गया। अवैस खान से बात करते हैं। अवैस, बताइएगा। बिल्कुल, जंग में रोड सेक्टर के अंदर जो है बड़े पैमानों पर स्कीमों के हवाले से इकदाम मुमकिन किए गए। इस ADP स्कीम के तहत जिसमें महकमा हाईवे की जानिब से जो है इब्तदाई टेंडरिंग का अमल जो है वो शुरू कर दिया गया है। 9 स्कीमें हैं जिनकी टेंडरिंग का अमल जो है महकमा हाईवे की जानिब से जो है वो शुरू किया जा रहा है, और इस 9 स्कीमों के अंदर में जो है मजमूई तौर पर जिसके इब्तदाई तखमीना है वो 1 अरब 15 करोड़ रुपए लगाया गया है। इस हवाले से जो है इन मजमूई स्कीमों के जो ADP के अंदर जो है ये स्कीमें शामिल थीं, और इस हवाले से जो है अगर बात की जाए मरकज़ी सड़कों की जो है तो जंग फैसलाबाद रोड का 32 किलोमीटर टुकड़ा जो है उसकी मरम्मत के लिए जो है वो 28 करोड़ 78 लाख रुपए की रकम जो है मुख्तस की गई है। उसी के अलावा जो है वो पक्के वाला बाईपास की मरम्मत के हवाले से भी जो है वो 12 करोड़ 58 लाख रुपए का इब्तदाई तखमीना तैयार किया गया है। इसी के अलावा जो है टोबा खुमाना रोड की मरम्मत के लिए जो है वो 12 करोड़ रुपए का इब्तदाई तखमीना तैयार किया गया है, जबकि जंग मद्दू की रुस्तम सरगाना रोड की भी मरम्मत की जाएगी। 24 किलोमीटर के इस टुकड़े की मरम्मत के लिए जो है वो 19 करोड़ 53 लाख रुपए की इब्तदाई तखमीना जो है वो तैयार किया गया है। इसी के अलावा जो है वो कायम परवाना से वरियाम वाला सड़क की मरम्मत के लिए जो है वो अभी फंड्स जारी किए गए हैं। 19 किलोमीटर के इस टुकड़े की जो है मरम्मत की जाएगी, जिसके लिए 20 करोड़ 38 लाख रुपए के फंड जो है मुख्तस किए गए हैं। मंसूबे की शफाफियत को बरकरार रखने के लिए जो है चीफ इंजीनियर हाईवे की सरबराही के अंदर खसूसी कमेटी भी कायम की गई है, जबकि इसके मंसूबे का जायज़ा लेने के लिए जो है वो कमिश्नर और डिप्टी कमिश्नर की सरबराही में भी कमेटी काम करेगी। ठीक है, बस बहुत शुक्रिया आपका तफसीलात के। फैसलाबाद बाईपास की सड़कों के गिर्द स्ट्रीट लाइट्स ना लगाई जा सकी। नडवाला अमीनपुर बंगला रोड पर स्ट्रीट लाइट्स की बहाली के लिए 1 करोड़ 20 लाख रुपए दरकार हैं। स्ट्रीट लाइट्स क्यों नहीं लगी, मामला क्या है, इमरान असलम से जानते। इमरान, बताइएगा। फैसलाबाद शहर के दाखिली रास्तों और बाईपासेस के अतराफ में स्ट्रीट लाइट जो है वो गायब हो चुकी हैं। इस हवाले से महकमा हाईवे फैसलाबाद की जानब से चीफ इंजीनियर हाईवेज को आगाह किया गया है। फैसलाबाद नडवाला अमीपुर बंगला रोड्स पर बेशतर स्ट्रीट लाइट चोरी हो चुकी हैं, और बेशतर स्ट्रीट लाइट जो है वहाँ से जो है वो खस्ताली का शिकार हैं, और इस हवाले से महकमा हाईवे फैसलाबाद की जानब से चीफ इंजीनियर से 1 करोड़ 20 लाख के फंड्स मांगे गए हैं। महकमा हाईवे फैसलाबाद की जानब से चीफ इंजीनियर्स को मरासल जारी करते सदा की गई है कि माली साल 2024 और 25 के लिए 1 करोड़ 20 लाख के फंड जारी किए जाएं, ताकि महकमा हाईवे फैसलाबाद अमीपुर नडवाला रोड पर जो है स्ट्रीट लाइट जो चोरी हो चुकी हैं या खस्ता हाल है उसकी तमीर और मरम्मत के काम से अंजाम दे सके। इसी तरह बाईपास के अतराफ में भी जो है वो शहर के दाखिली रास्तों से मुल्का सड़कों पर भी स्ट्रीट लाइट गायब हो चुकी हैं, और म्यूनसिपल जो हकाम हैं उनकी ये जिम्मेदारी है, लेकिन ताहाल फैसलाबाद में इन तमाम मकामात पर स्ट्रीट लाइट जो है वो गायब हैं, और इनकी रिहेबिलिटेशन और नई स्ट्रीट लाइट्स की बहाली के लिए 1 करोड़। ठीक है इमरान, बहुत शुक्रिया आपका तफसीलात के लिए। बिजली के पोल से करंट लगने के वाकयात की रोकथाम के लिए फेस्को का अहम इकदाम। फेस्को ने पोल्स की अर्थिंग के लिए सर्कल्स को हिदायत जारी कर दी है। तफसीलात अवैस अली से जानते हैं। अवैस, अपडेट कीजिए। बिल्कुल, पुराने और बसीदा पोल्स जो हैं अब वो करंट लगने के वाकयात का मौजब बनने लगे हैं। इसी वाले से नेपरा की जानिब से फेस्को को वाज़िया तौर पर हदायत जारी की गई हैं आकि फेस्को रीजन भर में जो पुराने और बसीदा पोल्स हैं उनकी तब्दीली को मुमकिन बनाया जाए, और इसके साथ साथ पोल्स की जो अर्थिंग का काम है उसको भी यकीनी बनाया जाए। इसी वाले से फेस्को हुकाम की जानिब से तमाम तर जो सर्कल्स हैं उनको हदायत जारी कर दी गई हैं कि पोल्स की अर्थिंग का काम जल्द अज जल्द मुकम्मल किया जाए, और इसके साथ साथ रीजन भर में फैसलाबाद के शहरी इलाकों, देहातों और अहम शाहराहों पर जो पुराने पोल्स हैं उनको तब्दील करके उनकी जगह नए पोल्स नस्ब किए जाएं, और इसके साथ साथ जो पुराने पोल्स हैं उनकी अर्थिंग का काम भी मुकम्मल किया जाए ताकि नाखुशगवार वाक़यात से बचा जा सके। इसी वाले से फेस्को हेडक्वार्टर की जानिब से अगस्त के आखिर तक का तमाम तर
सर्कल्स को टारगेट दे दिया गया है कि जिन पोल्स की निशानदही नेपरा की जानिब से की गई है या फेस्को के शोबा सेफ्टी की जानिब से की गई है, उन पोल्स की अर्थिंग भी की जाए और पुराने और बसीदा पोल्स जो हैं उनको तब्दील किया जाए ताकि सार्फिन को सहूलत फराहम की जा सके और तरसीली निज़ाम में बेहतरी लाई जा सके, सिस्टम की अपग्रेडेशन का काम जो है वो मुकम्मल किया जा सके। इसी वाले से फेस्को काम का यही कहना है कि नेपरा की हदायत पर न सिर्फ पुराने और बसीदा पोल्स तब्दील किए जा रहे हैं बल्कि पोल। ठीक है वैस, बहुत शुक्रिया आपका। फैसलाबाद में महकमा ज़राअत जाली ज़रूरी अद्वियात बेचने वालों के खिलाफ इन एक्शन खुसूसी ज़रूरी टास्क फोर्स कायम कर दिया। शिकायत दर्ज होने पर 24 घंटे में कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। मामला क्या है और मजीद तफसीलात अब्दुर्रहमान से जानते हैं। जी अब्दुर्रहमान। महकमा ज़राअत की जानिब से ज़रूरी टास्क फोर्स का क्याम अमल में लाया गया है कि जहाँ कहीं भी गैर मियारी जहर बिकेगा, जहाँ कहीं भी गैर मियारी स्प्रे या अद्वियात बिकेगी, उन तमाम के खिलाफ कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। वाज़ेह रहे कि किसानों की जानिब से मुतालबात किए जा रहे थे कि जाली खाद स्प्रे बिकती है जिस वजह से उस तरह से असरात नहीं हो पाते और उसका अल्टीमेटली नुकसान होता है किसानों को, जिस पर किसानों को नुकसान से बचाने के लिए महकमा ज़राअत की जानिब से ज़रूरी टास्क फोर्स का क्याम अमल में लाया गया है कि किसान सोशल मीडिया के व्हाट्सएप के ज़रिए उनसे रब्ता कर सकता है, बता सकता है कि कहाँ से गैर मियारी जो है वो जहरीली या इसके अलावा जो है वो जाली खाद या स्प्रे या बीज बिक रहे हैं, तो उनके खिलाफ 24 घंटों के अंदर अंदर महकमा ज़राअत टास्क फोर्स की टीमें अपनी कार्रवाई अमल में लाई जाएंगी। और इस सिलसिले में बताया जा रहा है कि पंजाब भर में जहाँ कहीं से भी शिकायत सामने आ रही है उनके खिलाफ कार्रवाई अमल में लाई जा रही है। और फैसलाबाद के भी कोई भी किसान अगर उस नंबर पर रब्ता करेगा तो 24 घंटों के अंदर अंदर महकमा ज़राअत की जो ज़रूरी टास्क फोर्स है वो कार्रवाई अमल में लाई जाएगी और इसका मकसद ये है कि किसानों को जाली अद्वियात से जाली ज़रूरी। ठीक है अब्दुर्रहमान, बहुत शुक्रिया आपका। चिनियोट में नाके लगाकर लूटमार के वाक़यात, डीपीओ की एसएचओ की सरजनिश, इस हवाले से मज़ीद तफसीलात बाबर मुनीर से जानते हैं। बाबर बताइएगा। पिछले कई रोज़ से चिनियोट की जो मुख्तलिफ शाहराएँ हैं वहाँ पर जो डाकू है वो रात के नाके लगाकर शहरियों को लूटते थे, मुसाफिर बसों को भी लूटा गया था, जिस पर पुलिस की जानिब से मुकदमा दर्ज किया गया। तो रात गए डीपीओ चिनियोट अब्दुल्ला अहमद की ज़ेर सदारत क्राइम की सूरत हाल का जायजा इजलास था जिसमें डीएसपीज़, एसएचओज़ और तफ्तीशी अफसरान ने शिरकत की है, जहाँ पर मुख्तलिफ जगहों पर जो वारदातें हुई हैं वहाँ के जो मुतलका एसएचओज़ हैं उनकी सख्त सरदनश की गई है डीपीओ की जानिब से। और बढ़ती हुई जो वारदातें हैं उस पर जो है वो उनकी जानिब से गहरी तशवीश का इजहार किया गया है, सख्त बरहमी का इजहार किया गया है और एसएचओ की सख्त सरदनश भी कर दी गई है। इसके साथ साथ डीपीओ की जानिब से यह फैसला किया गया है कि रात के औकात में रात 8 बजे से लेकर सुबह 5 बजे तक झंग और फैसलाबाद से और इसके साथ साथ लाहौर से जितने भी मुख्तलिफ कंपनियों के जो बड़े एसी टाइम गुजरते हैं वहाँ पर एक एक एहलकार जो है उन गाड़ियों में तैनात किया जाएगा। इसके साथ साथ जो बस कंपनीज होंगी उनकी जानिब से भी एक प्राइवेट सिक्योरिटी गार्ड जो है वो रखा गया है। और इसी तरह जैसे ही लाहौर रोड पर बुर्जिया के करीब जो पुलिस ज़िला चिन्नौट की हदूद शुरू होती है वहाँ पर एक एहलकार जो है वो उस गाड़ी में बस में सवार होगा और जहाँ तक ज़िला चिन्नौट की हदूद है वो उस हदूद तक उस गाड़ी को क्रॉस करवाएगा। इसी तरह भुआना जैसे ही ज़िला चिन्नौट की हदूद शुरू होगी भुआना से, तो भुआना से एक एहलकार जो है वो लाहौर रोड पर चौकी बुर्जिया तक उस गाड़ी को क्रॉस करवाएगा। इसी तरह इन 8-10 घंटों में तकरीबन 18 के करीब मुख्तलिफ जो एसी टाइम्स हैं, मुख्तलिफ कंपनीज़ की जो बसेज मुसाफिर बसेज हैं वो गुजरती हैं, जहाँ पर 18 जो एहलकार हैं उन्हें तैनात कर दिया गया है। इसके साथ साथ एसएचओज़ को गश्त बढ़ाने की हिदायत की गई है। डीपीओ की जानिब से यह भी फैसला किया गया है कि पहले रूटीन में हर रात पूरे ज़िले में एक गस्टेड ऑफिसर डीएसपी लेवल का गश्त करता था, अब जियो गश्त में एक और डीएसपी की ड्यूटी भी लगा दी गई है जो सारी रात रोड पर गुजारा करेगा और गश्त को चेक किया करेंगे। और इसके साथ साथ बाबर, बहुत शुक्रिया आपका तफसीलात के लिए। पाकी वजीर बहरी अमूर कैसर अहमद शेख की जानिब से जश्न आज़ादी के मौके पर हर साल की तरह आवाम को तोहफतन पेट्रोल देने की रिवाज बरकरार। गुज़श्ता रोज 5000 से जायद मोटरसाइकिलों को 5-5 लीटर पेट्रोल दिया गया। आज रिक्शों में पेट्रोल तकसीम किया जा रहा है। इस हवाले से बात करेंगे वकार गुमन से। वकार, अपडेट कीजिए। वफाकी वजीर बहरी अमूर कैसर अहमद शेख की जानिब से हर साल की तरह इस साल भी जश्न आज़ादी के मौका पर हज़ारों रिक्शों और मोटरसाइकिलों को 5 लीटर का पेट्रोल का जो तोहफा दिया जाता है उसका सिलसिला जारी है। इस वक्त भी वो हर रिक्शे वाले को, हर मोटरसाइकिल वाले को वक्तन खुद उनके जो पेट्रोल दे रहे हैं। हमारे साथ इस वक्त वफाकी वजीर मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। शेख साहब, हर साल की तरह आपकी ये रवायत बरकरार है, क्या कहेंगे कितने हज़ार मोटर बाइक्स को अब तक दिया गया है और रिक्शे वाले कितने अभी तक लग गए हैं? ये देखिए तकरीबन 5000 से ऊपर रिक्शा और मोटरसाइकिल हम देंगे और हर साल की रिवायत है जो झंडा लगा के या वैसे हमारे
आ जाता है हमारे डेरे पे, उसको आज़ादी की खुशी में। ये कितने सालों से रिवायत जारी है। अच्छा, ये तकरीबन कितने हज़ार लीटर पेट्रोल तोहफा तनाब दे रहे हैं? मैं 5 लीटर देता हूँ हर एक को, तो 25-30 हज़ार कम से कम देते हैं लीटर जी। और क्या मैसेज देंगे जश्न आज़ादी के हवाले से? जश्न आज़ादी मैं यंगस्टर्स को इन पर्टिकुलर बताऊंगा कि मुल्क जो है बड़ी जो है ना मेहनत से हासिल किया गया है, और इसकी कदर करें, इस मुल्क की कदर करें। और इसमें मैं आपको बताऊं, मैंने दुनिया पूरी घूमी है, जितना पोटेंशियल पाकिस्तान में है, यंगस्टर्स को मायूसी फैलाई जा रही है। हालांकि यही मुल्क है जहां अभी कमाई होनी है और कमाई हो रही है, हर किस्म का रोज़गार मिलेगा जहाँ। हमारी वज़ीर आज़म और उनकी हुकूमत पूरी मेहनत कर रही है। हम बिजली के नरखों में भी कमी कर रहे हैं ताकि लोगों को जो तकलीफ है वो ख़त्म हो। उसके अलावा तालीम पे बहुत जोर दे रहे हैं, हम IT पे जोर दे रहे हैं, हम ज़राअत पे जोर दे रहे हैं, हम उन शोबों पे जोर दे रहे हैं जहाँ पे पहले तवज्जो नहीं दी जा रही थी। और इंशाअल्लाह आप जल्द ही इसके समर देखेंगे, आज़ादी के समर। आज़ादी एक बड़ी नेमत है, और हमारी कौम है उसमें बड़ी जानदार कौम है, बड़ी जो है बाहिम्मत और मेहनत वाली कौम है। और मैं ये समझता हूँ, देखिए हम एजुकेशन और हेल्थ पे मैं ख़ास तवज्जो करता हूँ, करोड़ों रुपए अपनी जेब से देता हूँ, और ये खुशी मुझे महसूस होती है। और लोगों को भी मोटिवेट करता हूँ। यहाँ चनियोट में मेरे हल्के में 2 टॉप क्लास यूनिवर्सिटीज़ हैं जो पाकिस्तान के किसी हल्के में नहीं है। और हमने और यहाँ पे जो है ये सीवरेज का सिस्टम ठीक करना है, हमने यहाँ पर स्टेडियम बनाना है यंगस्टर्स के लिए। हमारी बहुत बड़ी, आप देखिएगा चनियोट को हम दिन ब दिन संवारेंगे। बिल्कुल जी, कुछ रिक्शे वाले भी मौजूद हैं, उनसे भी बात करते हैं कि वो पेट्रोल लेके खुशी का इजहार कर रहे हैं। यानी पेट्रोल दिया गया है, हर साल लेते हैं जी, खुश हैं जी। बिल्कुल जी, जिसको पेट्रोल मिल रहा है वो खुशी का इजहार कर रहा है। और शेख साहब का ये कहना है कि पाकिस्तान मज़ीद तरक्की करेगा, यही मुल्क तरक्की करेगा। नौजवान ठीक है वकार, बहुत शुक्रिया आपका।